કરવા જઈ રહ્યા છીએ. કાર્યક્રમની આછેરી રૂપરેખા આપ સૌને જણાવી દઉં. સૌપ્રથમ દીપ પ્રાગટ્ય દેશું, ત્યારબાદ વંદે માતરમ ગાન કરીશું, ત્યારબાદ આદરણીય ગોપાલકૃષ્ણ અગ્રવાલજી રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તાને જે મહેમાનો પધાર્યા છે તેનું ભૂકે અને ખેસથી સ્વાગત કરીશું. ત્યારબાદ રાજકોટ શહેર અધ્યક્ષ ઉદ્ધવભાઈ દવે આપણને સ્વાગત પ્રવચન આપશે અને ત્યારબાદ ક્રમશઃ આપણે કાર્યક્રમ જે હશે તે માણીશું. વિકસિત ભારતનો રોડમેપ એટલે કે આપણું ભારત સરકારનું બજેટ અને એ બજેટને અનુલક્ષીને અનેકવિધ કાર્યક્રમો જ્યારે ચાલી રહ્યા છે ત્યારે આજે વેપાર અને ઉદ્યોગ સંવાદનો કાર્યક્રમ યોજાઈ રહ્યો છે. ત્યારે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત આપણને જેમનું આજે માર્ગદર્શન મળવાનું છે, જેને આજે સવારે 2 કાર્યક્રમમાં અમારે સાંભળવાનું થયું અને એમની આ બાબતનું નોલેજ અમને જાણવા મળ્યું એવા આપણા રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા આદરણીય ગોપાલકૃષ્ણ અગ્રવાલજી, એવા જ મારા સાથી મિત્ર જેમની સાથે ખૂબ કામ કરવાનો અનેરો અવસર મને મળ્યો છે અને રાજકીય યાત્રા સાથે આધ્યાત્મિક યાત્રા પણ કરેલી છે એવા પ્રદેશના મીડિયા ઇન્ચાર્જ પ્રશાંતભાઈ વાળા. આપણા આ બજેટ અંગેના જે કંઈ કાર્યક્રમો થઈ રહ્યા છે એના પ્રદેશ કારોબારી સદસ્ય અને સૌરાષ્ટ્રના ઇન્ચાર્જની જેમની જવાબદારી છે આદરણીય ધનસુખભાઈ ભંડેરી સાહેબ, આપણા મેયર શ્રી નયનાબેન પેઢડિયા, ધારાસભ્ય શ્રી ડોક્ટર દર્શિતાબેન, પૂર્વ ધારાસભ્ય પૂર્વ મંત્રી ગોવિંદભાઈ પટેલ, આપણા પૂર્વ અધ્યક્ષ કમલેશભાઈ મીરાણી, આપણા પૂર્વ અધ્યક્ષ મુકેશભાઈ દોશી, બંને મહામંત્રીશ્રીઓ યોગેન્દ્રસિંહ જાડેજા અને લલિતભાઈ વાડોલિયા, પૂર્વ મહામંત્રી અશ્વિનભાઈ મોલિયા, દંડક મનીષભાઈ રાડિયા, રાજુભાઈ ધ્રુવ, શિક્ષણ સમિતિના ચેરમેન વિક્રમભાઈ પૂજારા, તેમજ અત્રે ઉપસ્થિત બજેટ અંગેનો જે વાર્તાલાપ છે એ સાંભળવા આવેલા આપ સૌ પ્રબુદ્ધ નાગરિકજનો, સર્વેનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું, આપ સૌને આવકારું છું. આપણા યશસ્વી આદરણીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ અને આપણી રાષ્ટ્ર પ્રેમી સરકાર દ્વારા જે જનજનને ઉપયોગી થઈ શકે છે એવું બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું અને આપણું કર્તવ્ય હોય એમાં આ બજેટ રજૂ થયું. આપણા આદરણીય નાણામંત્રી શ્રી નિર્મલા સીતારામનજીએ 9મી વખત આ પ્રજાલક્ષી બજેટ રજૂ કર્યું. એને આપણે જનમાનસ સુધી પહોંચાડવાનો ભારતીય જનતા પાર્ટીના અનેકવિધ કાર્યક્રમો ચાલી રહ્યા છે, ત્યારે લોકો સુધી આપણે આપણી વાત એટલે પહોંચાડવા જઈ રહ્યા છીએ. આજે સવારે જ ખૂબ સરસ મજાની પ્રેસ કોન્ફરન્સ થઈ, જેમાં ખૂબ ડિટેલમાં આદરણીય ગોપાલજીએ વાત કરી આપણી કે આપણે ક્યાંથી શરૂ કર્યું અને આ ભારત દેશને આપણે ક્યાં પહોંચાડવા જઈ રહ્યા છીએ. 2047 નો જે આપણો રોડ મેપ છે એ આખી વાત એમણે રજૂ કરીને એ જ વાત આપ સૌની વચ્ચે એ મૂકવાના છે. ત્યારે વિશેષ કંઈ ન કહેતા ફરી એક વખત આપણે એમને જ સાંભળીએ એ જ વધારે યોગ્ય રહેશે. ત્યારે વિશેષ કંઈ ન કહેતા ફરી એક વખત આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું, આપ સૌને આવકારું છું. અસ્તુ ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ. સરકારની યોજના મુજબ ભારતીય જનતા પાર્ટીની કેન્દ્ર અને રાજ્યની યોજના મુજબ આજે કેન્દ્રીય નેતૃત્વનો પ્રવાસને અંતર્ગત સવારની પ્રેસ, સોશિયલ મીડિયા ઇન્ફ્લુઅન્સનો મીટ અને અત્યારે પ્રબુદ્ધ નાગરિકોને મળવાનો કાર્યક્રમ, એવા ત્રિવિધ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત દેશના જાણીતા અર્થશાસ્ત્રી, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ, અનેકવિધ આર્થિક વ્યવસ્થાને જોતા એવી અનેક
કેન્દ્ર સરકારની યોજનાઓમાં જોડાયેલા માર્ગદર્શન આપતા અને આપણા રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા માની ગોપાલ કૃષ્ણ અગ્રવાલજી, શહેર ભાજપના નવનિયુક્ત પ્રમુખ ડોક્ટર માધવ દવે, મુરબ્બી ગોવિંદભાઈ પટેલ, ભાઈ શ્રી કમલેશ મીરાણી, પ્રશાંતભાઈ વાળા, લાખાભાઈ સાગઠિયા, દર્શિતાબેન શાહ, મેયર નૈનાબેન, રાજુભાઈ ધ્રુવ, મહામંત્રી શ્રી યોગેન્દ્રસિંહજી, લલિતભાઈ, સૌ સાથી પ્રબુદ્ધ નાગરિકજનો, ભાઈઓ બહેનો, ભારતીય જનતા પાર્ટીની કેન્દ્રની યોજના દેશભરમાં બજેટના માધ્યમથી કેન્દ્રનું બજેટ વ્યાપક પ્રમાણમાં બૂથ સુધી જાય અને લોકો જાણે અને કાર્યકર્તા પણ જાણે એ દિશામાં માનનીય પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશભાઈ વિશ્વકર્માના પ્રયાસથી પહેલીવાર ગુજરાતમાં બજેટ પહેલા એટલે કે પ્રી બજેટ એક વર્કશોપનું આખા દિવસનું આયોજન, જેમાં અમારી બજેટ ટીમ અને વક્તાઓ અલગ અલગ ઝોનમાંથી આપણા સૌરાષ્ટ્ર, ઉત્તર, મધ્ય અને દક્ષિણ ઝોનના વક્તાઓનો એક પૂર્ણ 4-5 કલાકનો વર્કશોપ થયો અને એના પછી બજેટના કાર્યક્રમો આવતીકાલે જુનાગઢ જિલ્લાનો છેલ્લો કાર્યક્રમ છે એટલે 15 જિલ્લામાં 6 કાર્યક્રમ જિલ્લા છે એટલે કે 90 કાર્યક્રમ સૌરાષ્ટ્ર ઝોનમાં આવતીકાલે પૂર્ણ થશે. મોટા પ્રમાણમાં તમે જો કે લોકોનું આ બજેટ અંગે મળવાનું થયું છે, જાણવાનું થયું છે, સાંભળવાનું થયું છે અને વક્તાઓ પણ આપણા ધારાસભ્યશ્રીઓ, આગેવાનો, એમપીસીઓ, મંત્રીશ્રીઓ આ સૌરાષ્ટ્રભરમાં અને ગુજરાતભરમાં અલગ અલગ જગ્યાએ જેમને મોકલવાના હતા આપણે મોકલ્યા. આજે જેમ સુરતમાં, અમદાવાદ, બરોડામાં પણ રાષ્ટ્રીય નેતૃત્વ આવ્યા પ્રેસ લેવામાં, આપણે ત્યાં પણ રાજકોટમાં આપણા રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા આવ્યા છે. તો આવી રીતે પહેલીવાર માની નરેન્દ્રભાઈની કલ્પના, મોદી સાહેબની કલ્પના છે. જ્યારે માની ગોપાલજી કહેતા હતા કે અમારી બેઠક લીધી ત્યારે સાહેબે કીધું કે આપણે બજેટને લોકાભિમુખ બનાવવું છે. બજેટ તો આવતું હોય, આપણે સાંભળી તેની સ્પીચ આપણે તમે કાર્યાલયમાં ખૂબ મોટી છે, પણ ત્યારે આપણને લાગતું હશે નોર્મલ, પણ આજે ગોપાલ કૃષ્ણજી એમની વાત કરશે ત્યારે લાગે છે બજેટમાં એટલું બધું છે ડિટેલમાં, કારણ કે બજેટ સ્પીચ તો સમયમાં પૂરી કરવાની હોય, પણ અંદર ખેડૂત માટે, યુવા માટે, મહિલા માટે, બધા જ સેક્ટર માટે, ઉદ્યોગ માટે, યુવાનો માટે, આ બધા જ માટે કંઈક ને કંઈક આપ્યું છે એનો ઉલ્લેખ માનનીય ગોપાલ કૃષ્ણજી કરવાના છે. ત્યારે બજેટને આપણે જાણીએ એટલું નહીં, સાંભળીએ એટલું નહીં, પણ બજેટની વાત, લોક ઉપયોગી વાત, છેવાડાના માનવી સુધી પહોંચાડવાની વાત આપણે જોડવાની છે. અને હવે સમય શરૂ થયો છે. હમણાં 18મી ફેબ્રુઆરીએ ગુજરાત સરકારનું બજેટ આવશે, એમાં પણ નાના મોટા કાર્યક્રમો આવવાના છે. પછી પાછું પ્રશિક્ષણ વર્ગ પણ આવવાનો છે. આવા અનેકવિધ કાર્યક્રમો ચૂંટણી સુધી માન્ય પ્રદેશ પ્રમુખ, માન્ય મોરચાઓના અધ્યક્ષોનો, માન્ય મુખ્યમંત્રીશ્રીનો પ્રવાસ પણ આવવાનો છે. આપણી જે લોકલ બોડી, કોર્પોરેશન, તાલુકા પંચાયત, જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણી આવવાની છે, એ પહેલા બધાના પ્રવાસ. તો લોકો સુધી પહોંચવામાં કાર્યકર્તા ક્યાંય પાછો ન પડે. પાછું તો આપણી પાસે બહુ છે. છેલ્લી 10 વર્ષની સરકાર કેન્દ્રની અનેકવિધ યોજનાઓ, આ વખતનું બજેટ, રાજ્ય સરકારમાં અનેકવિધ સરકારના પગલાઓ, આ બધી જ વાતો લોકો સુધી પહોંચાડવાના વાહક કે વકીલ એ કાર્યકર્તા બનતો હોય છે. ત્યારે આપણી જવાબદારી વધે છે કે બૂથ સુધી હવે સંપર્ક કરીને લોકોને ભારતીય જનતા પાર્ટીની કેન્દ્રની મોદી સાહેબની સરકારના વ્યાપક પ્રમાણમાં ભૂમિ જે રીતે પગલાઓ લીધા છે અને આગામી અસર પડવાની છે વાત આજના બજેટ સ્પીચ પછી આપ લઈ જશો એવી આપ સૌ પાસે અપેક્ષા સાથે આ હેતુ જે છે બજેટના આ કાર્યક્રમો કરવાનો કે યુવાનોમાં, કોલેજોમાં પણ કાર્યક્રમ ચાલી રહ્યા છે. સરકારના માધ્યમથી સૂચનાઓ આપીને અમે એનું સંકલન કરી રહ્યા છે, વક્તાઓ મોકલી રહ્યા છે. ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ અલગ અલગ કોલેજમાં, યુનિવર્સિટીમાં જઈ રહ્યા છે. મહિલાઓના સંમેલન થયા, સવાર કિસાનોના ગ્રામ્ય વિસ્તાર મોટા કાર્યક્રમ થયા. મારી પ્રદેશ પ્રમુખ પણ આવતીકાલે જામનગરમાં છે આ શિવરાત્રી નિમિત્તે, જુનાગઢ અને એનો પણ મોટો કાર્યક્રમ થવાનો. તો આ બધા કાર્યક્રમોનું મૂળ હેતુ છે, આપણી ભૂમિકા છે કે બજેટ અંગેના જે કઈ પગલાઓ છે ને અસર છે એ લોકો સુધી લઈ જવી અને એને કારણે ભારતીય જનતા પાર્ટીના લોકોનું સમર્થન છે, પણ જન સમર્થનમાં વધારો થાય, પ્રજામતમાં વધારો થાય એ કલ્પના સાથે કામ કરીએ, એમાં સફળ થાઓ એવી શુભેચ્છા સાથે ધન્યવાદ. ભારત માતા કી જય. આભાર. સૌને રામ રામ. सूत्र रूप में ही बात करनी चाहिए. तो यहाँ पे तो इंटेलेक्चुअल प्रबुद्ध वर्ग के सब लोग हैं, उद्योग वर्ग के लोग हैं, तो बहुत ज्यादा
बजट के इंटीग्रिटीज में मैं नहीं जाऊंगा, जब टू वे कम्युनिकेशन हम रखेंगे, अगर आपके कुछ प्रश्न होंगे तो वो भी हम लेंगे और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ एक बार दोनों हाथ उठा के बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। यहाँ पर जो इस कार्यक्रम में बहुत सफलता से, जैसे बताया, 2 कार्यक्रम आज हो चुके हैं, प्रेस मीट, इन्फ्लुएंसर मीट। तो श्री डॉक्टर माधव दवे जी, उनकी पूरी टीम ने, दोनों महामंत्री ललित जी, योगेंद्र जी और धनसुख भाई जी, जिन्होंने जितनी मेहनत से, प्रशांत जी, राजू भाई ने, और यहाँ पर उपस्थित सभी महत्वपूर्ण पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्तागण, महिला शक्ति के रूप में मेयर भी हमारे बीच में है, दर्शिता बहन भी हमारे साथ है, उन सबका भी अभिनंदन। मेहनत कार्यक्रम में लगती है, उसको सफलतापूर्वक किया, इसके लिए मैं इनको बधाई देना चाहता हूं। देखिए, आप लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने बजट सुना, बजट वित्त मंत्री जी का भाषण सुना आप लोगों ने? किसी ने नहीं सुना हो? सबने सुना है। अच्छा, चर्चा भी पढ़ी होगी, बातचीत सुनी होगी, उसके बारे में इतने दिनों से आ रहा है। देखिए, बजट का ये लक्ष्य, इसकी इंपॉर्टेंस तो आप सबको पता चल गई। वित्त मंत्री जी ने बार बार कहा है कि यह जो विकसित भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम सबके सामने लक्ष्य रखा है 2047 में, उसकी आधारभूत संरचना रखने के लिए फाउंडेशन के रूप में इस बार यह बजट को लेके आए हैं। कोई लोक लुभावन नारे, लोक लुभावन प्रोविजन इसमें नहीं किए, लेकिन एक आर्थिक रूप से सशक्त भारत बनाने के लिए जो फाउंडेशन ले डाउन करनी है, जिस तरह से ये 21वीं सदी का दूसरे जो क्वार्टर का यह पहला महत्वपूर्ण बजट है, उस तरह के सारे प्रावधान इसमें किए गए। और आने वाले 25 वर्ष में, जब 2047 तक भारत जिस लक्ष्य पे पहुंचना चाहता है, उसके लिए कौन सा क्षेत्र है जहां पे बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ने के लिए हमें काम करना है, तो उसको ध्यान में रख के ये बजट लिया गया है। पिछले 10-11 वर्ष, ये 11वां बजट है, उसमें कई तरीके से इनिशिएटिव लिए हैं, उनके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, आप सबको ध्यान में भी होगा, आज सोशल मीडिया और उस पर भी काफी चल रहा है। लेकिन उन 11 वर्ष के सफल प्रयास के कारण, और हर बजट में किसी ना किसी एक खास विषय पे ध्यान रखते हुए फोकस तरीके से काम करने के कारण, अगर हम भारत की अर्थव्यवस्था को वर्तमान स्थिति में देखें, तो जिनको कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल पैरामीटर्स, और जो फंडामेंटल है इकोनॉमी के, वो सब बहुत अच्छी तरह से स्थापित इस वक्त भारत में है। और भारत अब उस स्थिति पे पहुंच गया है जहां पे लीप फ्रॉग करके, जंप करके अर्थव्यवस्था को तेज गति प्रदान कर सकता है। और इस पोटेंशियल ऑफ भारत की जो शक्ति है, उसको केवल हम ही लोग नहीं बोल रहे, पूरा विश्व बोल रहा है। अभी लैरी फ्रैंक का भी मैं 2 दिन पहले स्टेटमेंट जियो वर्ल्ड के साथ, मुकेश अंबानी के साथ उन्होंने बातचीत में कहा कि भारत, द इंडिया ग्रोथ स्टोरी इज नाउ कंप्लीटली एस्टैब्लिश्ड। ब्लैक रॉक जितना बड़ा फंड है, कई कंट्रीज से बड़ा उसका फंड चलता है, उसने, उनके सीईओ ने कहा, इंडियन ग्रोथ स्टोरी इज नाउ कंप्लीटली एस्टैब्लिश्ड। यूरोपियन यूनियन की चेयरमैन ने कहा कि इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है, सस्टेनेबल ग्रोथ डेवलपमेंट पूरी तरह से आगे बढ़ेगा, और जीडीपी ग्रोथ रेट कंसिस्टेंटली 7% से ऊपर है, आने वाले समय में टारगेट है 10% हो जाएगा। फिर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, एफडीआई सबसे ज्यादा भारत में आ रहा है, इन्फ्लेशन 2% से नीचे के अंतर्गत है, फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में है। इन सब मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को मजबूती से अगर देश में हम स्टैब्लिश कर पाए, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि भारतीय जनता पार्टी, खासकर मोदी जी ने इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को अपना मुख्य प्रमुख एजेंडा माना और उसके ऊपर काम किया है।
भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मैं इकोनॉमिक अफेयर्स देखता हूँ, इकोनॉमिक इश्यूज को देखता हूँ, हम लोग कभी भी, आज यहाँ पे व्यापारी वर्ग और महिला उद्यमी सब लोग यहाँ पे हैं, आप लोग इस बात को बिल्कुल अंडरलाइन करके मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी बिजनेस कम्युनिटी और एंटरप्रेन्योर्स को नेशन बिल्डिंग में पार्टनर मानता है। एक समय भारत का था 1991 में ऐसी स्थिति थी कि भारत दिवालियापन के कगार पे हो गया था। वो क्यों था? उस समय की जो सत्ता में लोग थे वो कहीं ना कहीं सोशलिज्म का एक इस तरह का एक माहौल उन्होंने क्रिएट कर दिया था। बिजनेस कम्युनिटी वालों को गाली दे दो, इंडस्ट्रियलिस्ट को गाली दे दो, व्यापारी वर्ग को उनको किसी भी तरह से देश की आर्थिक प्रगति के अंतर्गत उनका रोल नहीं मानना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से व्यापारी वर्ग और बिजनेस कम्युनिटी को अपना पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग मानते हैं। उसके कारण 11 वर्ष में अलग अलग क्षेत्रों में एक इकोसिस्टम तैयार किया है, चाहे स्टार्टअप को लेके, चाहे मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स को लेके, टैक्सेशन को लेके, कंप्लायंसेस को लेके, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक स्थिति पे हम आए। अब हम लोग सब बिजनेस कम्युनिटी में होते हैं। मैं कई बार स्कूल कॉलेजेस में भी जाता हूं, तो हम बातचीत, मैंने एक बार स्कूल के बच्चों से पूछा कि तुम क्या सोचते हो, क्या चाहते हो कि भारत विकसित भारत बन जाए? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ हम सब। मैंने कहा कोई ऐसा है जो नहीं चाहता? बोले नहीं, सबने हाथ खड़ा किया, हम चाहते हैं भारत विकसित भारत बन जाए। तो मैंने कहा अगर चाहते हो तो उसके लिए क्या आप हमें अमेरिका के पास हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं, या यूएस यूके के पास चले जाएं, जर्मनी के पास चले जाएं कि हमें विकसित भारत बना दो, तो बना देंगे? उनका नहीं, वो भी नहीं करेंगे। फिर मैं कहा हम सब घर में बैठ जाएं और माला जपने लग जाए कि भाई हम विकसित भारत हो जाओगे? नहीं, हमें सबको मिलके काम करना है। तो सरकार एक इकोसिस्टम क्रिएट करती है, एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, एक पॉजिटिव परसेप्शन क्रिएट करती है और मेहनत से एक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है। उस अपॉर्चुनिटीज को हम अपने इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन करते हुए देश के, प्रदेश के, परिवार के इंटरेस्ट में काम करते हैं, तो जो लक्ष्य हमारा है वो सफल होगा। तो मैं आपके सामने कुछ बातें अवश्य रखूंगा जिसपे, और दूसरी बात है कैरियर ओरिएंटेशंस भी अपने परिवार में बच्चे होते हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स के रूप में डेवलप हो रहे होते हैं, वो लोग अपना आने वाले समय में किस कैरियर को अपनाएं इस बारे में चिंता करते हैं। तो हमें ध्यान में आना चाहिए कि सरकार का फोकस, गवर्नमेंट का फोकस किन एरियाज में है, कहाँ इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कहाँ पे हमारे जो पोटेंशियल है भारत का वैश्विक स्तर पे, कहाँ पे उस पोटेंशियल को कैटलाइज करते हुए हम ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अगर उन एरियाज को हमने आइडेंटिफाई कर लिया और अपनी इंडिविजुअल एक्टिविटीज को उससे अलाइन कर लिया, तो हम अपना भी लाभ करेंगे और अपने परिवार और आने वाली जनरेशंस के लिए भी हित में काम करेंगे और देश का भी उन्नति की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो वो कुछ एरिया बताऊं, क्योंकि जिस तरह तो कल से मैं आया हूं और लोगों से यहाँ पे सभी लोगों से इंटरेक्शन हुआ है, मुझे ये देख के बहुत खुशी हो रही है और मैं तो बहुत प्रसन्न होता हूं, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ को मैं मानता हूं कि बिना आर्थिक प्रगति के, बिना आर्थिक महाशक्ति बने भारत विश्व के की लीडरशिप नहीं स्टैब्लिश कर सकता। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ एमएसएमई हब है, स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, यहाँ पे डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर काफी काम हो रहा है, टेक्सटाइल के अंदर इसी तरह की सारी एक्टिविटी, व्यापार, जेम एंड इमिटेशन ज्वेलरी के अंदर इतना बड़ा एक्टिविटीज हो रही है। तो यहाँ पे एक एंटरप्रेन्योरशिप गुजरात में तो खासकर देखता हूँ, सूरत भी गया था, बड़ौदा भी गया था, मैं देखता हूँ कि यहाँ पे उस एंटरप्रेन्योरशिप की जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, जॉब गिवर्स की जो टेंडेंसी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो एरियाज में आपके सामने अंडरलाइन करना चाहता हूँ। मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स अच्छे हैं, सरकार पूरी विल के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रही है, अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर रही है। उन एरियाज को आइडेंटिफाई करके सरकार आगे काम कर रही है। यह कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा, उनसे साथ अगर आप अपनी एक्टिविटीज को अलाइन करेंगे तो मुझे लगता है कि जो ट्रू इंटेंट है आज के कार्यक्रम का, इंटेंशन क्या है, जो लोग इसको यूज करने वाले हैं, जो लोग इसके ऊपर काम करने वाले हैं, उन तक उसका पूरा मैसेज पहुंचे,
वो लोग उस पर ध्यान रखें। अब एमएसएमई सेक्टर्स के पास कई बार मैं जाता हूँ, इतने अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स हुए, जेम है, ट्रीट्स है, टेक्नोलॉजी को यूज करके जो बिल डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म्स है, कर समाधान के बात है, टेक्नोलॉजी का यूज है, बट कई बार उन लोगों को उसकी जानकारी नहीं रहती तो वो उसका लाभ नहीं उठा पाते। तो वो जानकारी भी मिले, इसकी भी बहुत आवश्यकता है। दूसरी बात ये थी कि हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स तो किए, चाहे अभी यूएस के साथ हमने जल्दी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, ये 38वां देश है जिसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। इस 38वां फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इससे हमारी जो डेवलप्ड कंट्रीज के साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन काफी अच्छी तरह से हो जाएगा आने वाले समय में, और हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इसके साथ इन मार्केट का एक्सेस मिलने वाला है, मिल भी रहा है और तेजी से मिलेगा आने वाले समय में। और सरकार करेगी यूएस के साथ कुछ इश्यूज हैं, चैलेंजेस, बट बाकी कंट्रीज के साथ, यूरोपियन कंट्रीज के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जर्मनी के साथ, यूके के साथ, यूएई के साथ, मॉरिशस के साथ, इन कंट्रीज में हमारे मार्केट, हमारे बिजनेस कम्युनिटी को बहुत स्ट्रांगली एक्सेस मिल जाएगा। अब वो मिल भी जाएगा, लेकिन उसको पूरी तरह से अगर वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाए क्वालिटी के माध्यम से, कॉस्ट कॉम्पिटिटिव के माध्यम से और टेक्नोलॉजी इनोवेशन के माध्यम से, तो वह पूरी तरह से उसका लाभ नहीं उनको मिल पाएगा। तो इसके लिए भी इस बजट का फोकस था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, खासकर एमएसएमई सेक्टर, उनको किस तरह से सहूलियत मिले, किस तरह से उनका बिजनेस बढ़े, किस एरियाज में उनको सहायता की आवश्यकता है, किन एरियाज में वो रीजनल और ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ अपने बिजनेस को इंटीग्रेट करके आगे बढ़ सकते हैं। यह इसका मुख्य उद्देश्य इस बजट का था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब मैं युवा वर्ग, किसान वर्ग, महिला वर्ग, श्रमिक वर्ग के लिए भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए, लेकिन वो अलग अलग संवाद में लोगों ने लिए होंगे, वो देख सकते हैं। बट मैं इस पे फोकस करूंगा कि ये सेक्टर्स कैसे हमें जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए उसका लाभ कैसे हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मिले, उसके ऊपर भी फोकस करते हुए बहुत सारे इनिशिएटिव किए। और कुछ बात गुजरात को स्पेसिफिक लेके खासकर उसके ऊपर मैं संक्षिप्त में आपके सामने बात करूंगा। सबसे बड़ा जो कैटलिस्ट के रूप में सनराइज सेक्टर्स का एक बड़ा सेगमेंट इस बजट में अनाउंस किया गया है। वो सेक्टर्स जो ग्रोथ ओरिएंटेशन के लिए इंडिया की इकोनॉमी को कैटलाइज करेंगे, और उसके अंदर स्किलिंग हो, उसके अंदर फंडिंग हो, उसके अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ग्लोबल लेवल पे हो, उसके अंदर जो इंटीग्रेटेड इंटरनल बीच के जो प्रोडक्ट्स की आवश्यकता है उसकी आपूर्ति कैसे हो। तो कस्टम ड्यूटी में, कस्टम के अंदर प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन और कस्टम ड्यूटी रिडक्शन में बहुत मेजर काम किया। पार्ट बी में हर बार हम इनकम टैक्स वगैरह कोई देखते थे, लेकिन इस बार पार्ट बी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बदलाव किया। वो कस्टम और इंपोर्ट ड्यूटी को सिंप्लीफाई कैसे करना, रिडक्शन कैसे करना, और किन आइटम्स को रिड्यूस करना जिसमें कि हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, एग्रीकल्चर, किसान और डेयरी फार्मिंग और मैरीन सेक्टर को नुकसान ना हो, बट हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फायदा हो, उस तरह का पूरा ध्यान कस्टम में किया हुआ है। उसमें सब और ऐसे एरिया जो फ्यूचरिस्टिक रूप में इकोनॉमी को ग्रोथ देंगे, उनके अंतर्गत इस बात को किया। तो उसमें सबसे बड़ी बात है ग्लोबल डेटा सेंटर। आज एआई का बहुत बड़ा जमाना है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, एआई के माध्यम से इस तरह के रिन्यूएबल एनर्जी, ऐसे अपकमिंग सेक्टर्स हैं, उनको डेटा की बहुत जरूरत है। उनके लिए एफिशिएंट डेटा स्टोरेज हो, लोकलाइज डेटा हो, उनके लिए जो डेटा एनालिसिस के पूरे प्रोविजंस हो, तो ग्लोबल डेटा सेंटर बनाने के लिए बहुत सारे प्रोविजंस, कंसेशंस दिए हैं। अभी स्पेस टेक्नोलॉजी में यहाँ काम हो रहा है, डिफेंस में काम हो रहा है। अगर आप देखें तो एक सैटेलाइट तो लॉन्च करता है डिफेंस, ये स्पेस टेक्नोलॉजी, बट उसके लिए हजारों प्रोडक्ट जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में बन रहे हैं। तो इसी तरह उसके अंदर पिछले कई वर्षों से काफी काम प्राइवेट इंडस्ट्री को इन्वेस्टमेंट करने के लिए आगे लाए। एक न्यूक्लियर पावर एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग अपने रिन्यूएबल एनर्जी में, चाहे सोलर एनर्जी हो, चाहे ग्रीन हाइड्रोजन की एनर्जी हो,
चाहे विंड एनर्जी हो और ये न्यूक्लियर एनर्जी हो, जो रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत भारत सेल्फ सफिशिएंट हो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, तो उसके लिए न्यूक्लियर एनर्जी के अंतर्गत प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज दी है। शांति बिल लेके आए थे, उसके लिए बहुत सारे प्रोविजन किए। ग्लोबल डेटा सेंटर, न्यूक्लियर एनर्जी को प्राइवेट सेक्टर में इंप्लीमेंट करने का इसमें प्रोविजन है। सेमीकंडक्टर बहुत बड़ा एक चैलेंज, बॉटलनेक होता है हर इंडस्ट्री में, कंप्यूटर में, ऑटोमोबाइल में, हर इंडस्ट्रियल सेक्टर में सेमीकंडक्टर की बहुत आवश्यकता होती है। भारत में कोई सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं थी। सरकार ने गुजरात में ये बहुत बड़ी अभी टाटा ने शुरू की है, उसके अंदर इस बजट में भी बहुत सारे फंडिंग के ऑप्शन सरकार ने रखे। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, ये चौथा सनराइज सेक्टर के रूप में आइडेंटिफाई गया। इसमें इंस्टीट्यूट्स में स्किलिंग वगैरह के लिए काम किया। अब ये जो न्यू एआई वगैरह जो टेक्नोलॉजिकल रिच सेक्टर्स हैं, उसमें रेयर अर्थ मेटल मिनरल्स और क्रिटिकल मिनरल्स की बहुत आवश्यकता होती है। हम चाइना के ऊपर बहुत सारे ज्यादा डिपेंडेंट, हम ही नहीं पूरा वर्ल्ड इसके कारण डिपेंडेंट हो गया। इसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया था। इस बजट में रेयर अर्थ मिनरल कॉरिडोर्स बनाए गए, वो उनको डिपॉजिट्स को आइडेंटिफाई करना, उसको एक्सप्लोर करना, उसको कमर्शियली वायबल बनाना, इसके ऊपर सरकार ने रिसर्च डेवलपमेंट और इस बॉटलनेक को खत्म करने के लिए किन क्रिटिकल मिनरल्स का इंपोर्ट की सप्लाई चेन को स्टैब्लिश करना, ये भी काम किया है। टेक्सटाइल लेबर ओरिएंटेशन बहुत होता है मैन्युफैक्चरिंग के बाद, जो एमएसएमई के बाद टेक्सटाइल बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का है, तो मेगा टेक्सटाइल पार्क की बात है। और अगर किसी भी इंडस्ट्री के लिए जो टूल्स होते हैं, बहुत, मैं तो यूएस एक दो बार पीछे गया, कई बार तो हमने देखा वहां पे अगर एक प्लम्बर भी आता है तो पूरा टूल का किट लेके आता है, फटाफट काम करता है, चले जाता है। इलेक्ट्रीशियन आता है, उसके पास प्रॉपर टूल किट होती है, उससे एफिशिएंसी और काम की बहुत बढ़ जाती है। तो टूल किट मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी बहुत सारा इसमें प्रोविजन है। बायो फार्मा में हम ग्लोबल लीडरशिप अटेन कर सकते हैं, उसके लिए बहुत ध्यान दिया गया है। और एक कल्चरल इकोनॉमी, यानी आर्ट, म्यूजिक, डांस, फूड, फेस्टिवल, आर्किटेक्चर, इन एरियाज में भारत की सांस्कृतिक धरोहर जो है उसमें इमेंस पोटेंशियल है, बट उसको हम केवल एक तरीके से हॉबी के रूप में लेते हैं, उसको कैरियर के रूप में नहीं मानते। लेकिन आने वाले समय में इसकी बड़ी डिमांड होने वाली है, इसकी इकोनॉमिक कनेक्ट बनने के कारण इनकी वैल्यूएशन बहुत बढ़ जाएगी। अगर प्रादा का हमने केस सुना होगा, 800 रुपए की कोल्हापुरी चप्पल भारत में मिलती है, वो 84,000 में बेच रहा है। इन लोगों को ई कॉमर्स, ओएनडीसी, जेम के माध्यम से ग्लोबल मार्केट अगर एक्सेस, हमारे हैंडीक्राफ्ट के यहाँ भी कितने सारे हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह बनते हैं, इनको अगर ग्लोबल मार्केट एक्सेस मिल जाए, इनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए, इनके प्रोडक्ट की वैल्यूएशन हो जाए, तो यह ग्लोबल मार्केट एक्सेस हो जाएंगे। तो क्यों प्रादा 84,000 में बेचेगा, 800 की खरीद के हमारे आर्टिसंस बेचेंगे। कल्चरल इकोनॉमी, जिसमें अयोध्या वगैरह तो है, जो सांस्कृतिक रूप से, हेरिटेज के रूप से, पर्यटन के माध्यम से, टूरिज्म के माध्यम से धार्मिक स्थलों को हेरिटेजियल आइडेंटिफिकेशन, आइकॉनिक हेरिटेज प्लेसेस को आइडेंटिफाई करने के साथ कल्चरल इकोनॉमी के ऊपर भी सरकार ने बहुत तरीके से काम किया है। तो यह सनराइज सेक्टर्स बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें अगर हम अपने आने वाले पीढ़ी को इनके अंदर स्किल डेवलपमेंट के काम करें, इसके अंदर उनको प्रोत्साहित करें, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए लाएं, तो सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आप आर्थिक महाशक्ति के रूप में खड़ा किए बगैर हम विश्व गुरु नहीं बन सकते, ये बात हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर है। ऑब्जेक्टिव इज क्लियर, द पाथ इज क्लियर, द लीडरशिप इज कमिटेड, लीडरशिप पूरी तरह से प्रतिबद्ध है उसको पूरा करने के लिए। अब कलेक्टिव विल और कलेक्टिव एफर्ट सब लोगों की चाहिए, उसी के लिए यह एक्सरसाइज भी थी। और मुझे लगता है कि हम आपसे भी बातचीत सुनेंगे। गुजरात के लिए पर्टिकुलरली इस बार लास्ट बात करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, यानी आपस में जो प्रदेश हैं आपस में कॉम्पीट करें चीजों के लिए,
तो कई लोग कहते हैं कि इसके गुजरात के लिए क्या अनाउंस किया, मुझे उत्तर प्रदेश में कह रहे थे उत्तर प्रदेश के लिए क्या दिया, पश्चिम बंगाल वाले पार्लियामेंट में कल कह रहे थे, केरला वाले कह रहे थे। तो वित्त मंत्री जी ने स्पष्ट किया, प्रधानमंत्री जी ने भी किया, हमने बहुत सारी स्कीम्स अनाउंस की है जो स्टेट इनिशिएटिव लेगा, किसी के लिए रेस्ट्रिक्ट नहीं रखा। वो बहुत बड़ी बड़ी स्कीम्स है, उसमें फंडिंग है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण तरीके से सरकार योजनाएं लेके आई है, उसके सारे आयाम को इंटीग्रेट करके उसको स्टैब्लिश करने का पूरा रोड मैप भी बनाया हुआ है। जो स्टेट आगे आएगा वह स्टेट उन चीजों में इनिशिएटिव लेके उनको उन स्कीम्स को अपने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देगा। तो जो इसमें अब स्टेट के ऊपर है कि वो कितना आगे आके जमीन प्रोवाइड करना है और सरकार की योजनाओं के साथ अपनी पॉलिसी बना के उसको इंटीग्रेट करना है, उस पे काम करने वाले हैं। तो उसमें ये जो 5-6 जो एरियाज हैं जिसके अंदर सरकार ने ओपन एंडेड छोड़ा हुआ है इस बजट में, स्टेट्स आगे आओ और अपने स्कीम्स लेके आओ, इन स्कीम के साथ अपनी एक्टिविटीज को अलाइन करो और आप लोगों को फंडिंग भी की जाएगी। उसमें ग्लोबल डेटा सेंटर कोई स्टेट के लिए फिक्स नहीं किया, जो स्टेट चाहेगा वो डेवलप कर सकता है। केमिकल पार्क्स बनाने के लिए बहुत बड़ी स्कीम्स है जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग है, वह बना सकते हैं स्टेट्स। सिटी इकोनॉमिक जोन्स जैसे राजकोट है, बड़ौदा है, ऐसे हर स्टेट में कोई भी वो प्रदेश के ऊपर है वो अपने यहाँ पे सिटी इकोनॉमिक जोन की तरफ उसको आइडेंटिफाई करे, केंद्र सरकार उसके लिए पैसा देगी और काम करेगी। आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी स्टेट आइडेंटिफाई कर सकता है, उसके लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से सपोर्ट करेगी जहाँ पे टूरिज्म एक्सेट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। हेल्थ सर्विसेज हब्स बनाने की बात है, चाहे नर्सिंग इंस्टीट्यूशन बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, मेडिकल कॉलेज बनाना है, आयुष जैसे ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के ये इंटीग्रेटेड हब बनाने की भी योजना है पूरी और फंडिंग है, वो बना सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप हब की बात की है जिसमें अलग अलग सेक्टर्स के स्किल डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हायर एंड इंस्टीट्यूट, रिसर्च सेंटर्स बनाने की बात है। और 200 लीगेसी मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स, छोटे छोटे क्लस्टर्स हैं, जैसे हम कहीं देखते हैं कि वहां पे कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री बड़ी डेवलप हो जाती है, सूरत में डायमंड है, यहाँ पे स्पेस टेक्नोलॉजी है, तो ऐसे लीगेसी मैन्युफैक्चरिंग जो क्लस्टर्स हैं उनके ऊपर भी 200 पूरे देश में आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर सरकार आगे सपोर्ट करेगी। तो यह पूरी बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो मैंने बताया ही कि लोगों को लगता था कि वो चुनौती के रूप में शायद सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं उतना एक्सपेंडिचर करेगी, लेकिन लगभग 11 लाख करोड़ का हर साल जो एक्सपेंडिचर हो रहा था, जिसका हम इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना बेनिफिट देखते हैं, जिसका डिमांड भी क्रिएट होती है स्टील, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, लेबर की, तो उसको भी बढ़ा के 12.2 लाख करोड़ का इस बार एक्सपेंडिचर किया है। और स्टेट को लगभग 5 लाख करोड़ का सरकार ने प्रोविजन किया है कि आप अपने प्रोजेक्ट लेके आओ कैपिटल एक्सपेंडिचर के, हम लोग उसको लॉन्ग टर्म 50 इयर्स लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन के माध्यम से फाइनेंस करेंगे। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई 1 रुपया खर्च होता है तो उसका इकोनॉमिक एक्टिविटी में 3 गुना फायदा होता है। तो 17.5 लाख करोड़ का जब 1 साल में एक्सपेंडिचर होगा, उसका इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी मजबूती से आगे बढ़ेगी। तो यह बातें थी जो मुझे लगा कि आपके सामने मैं संक्षिप्त में रखूं। बजट अपने आप में फोकस्ड है, पॉपुलिस्ट मेजर्स को के ऊपर उसने किसी तरह से ऐसा नहीं किया है कि इकोनॉमिक एक जो आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए ये बजट को लॉन्ग टर्म फोकस के साथ किया है, लेकिन हर क्षेत्र की जन कल्याणकारी योजनाओं आदि में भी पूरी तरह से जो एफिशिएंसी गवर्नमेंट की इम्प्लीमेंटेशन की उसको कंटिन्यू करके प्रोविजन किया गया है। तो मुझे लगता है आप लोग इसका अपने अपने क्षेत्र में पूरा लाभ उठाएंगे और तभी इस कार्यक्रम की सफलता भी रहेगी। जो आप लोगों के सजेशन भी होंगे या पार्टी के पदाधिकारी जो अपने अध्यक्ष जी है उनकी टीम को आप देंगे। अभी बजट की प्रक्रिया चल रही है, पार्लियामेंट में अभी सेशन चल रहा है, बजट डॉक्यूमेंट पेश हुआ है, बट अभी करीब 1-1.5 महीने तक और इस पे चर्चा होगी। तो जो सजेशंस भी होंगे उन चीजों को भी इनकॉर्पोरेट करके एक विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ हम अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने
की संकल्प को दोहराते हुए मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करूंगा और आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि मुझको यहाँ आप लोगों ने बुलाया और तो मेरी बात कहने का मौका दिया। धन्यवाद। 2026-27 અંતર્ગત બજેટ સત્રના આજના વેપારી અને ઉદ્યોગના કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત આપણા રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા અને આજના મુખ્ય વક્તા માનનીય શ્રી ગોપાલકૃષ્ણજી, આપણા રાજકોટ મહાનગર શહેરના અધ્યક્ષ ડોક્ટર માધવભાઈ દવે, આપણા રાજકોટના મેયર શ્રી બેન શ્રી નૈનાબેન, ધારાસભ્ય શ્રી દર્શિતાબેન, ધારાસભ્ય પૂર્વ ધારાસભ્ય શ્રી ગોવિંદભાઈ લાખાભાઈ, આપણા આ બજેટ સત્રના ઇન્ચાર્જ અને સૌરાષ્ટ્રના આપણા ધનસુખભાઈ ભંડેરી, કમલેશભાઈ મીરાણી, આપણા પ્રવક્તા પ્રશાંતભાઈ વાળા, રાજુભાઈ ધ્રુવ, આ મંચ આ હોલની અંદર ઉપસ્થિત અલગ અલગ એસોસિએશનના હોદ્દેદારશ્રીઓ, અલગ અલગ વેપારી એસોસિએશનના હોદ્દેદારશ્રીઓ, પાર્ટીના મહામંત્રીશ્રીઓ, મહિલા મોરચાના હોદ્દેદારશ્રીઓ, સર્વેનો આ તકે હું આજના કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહેવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. ધન્યવાદ. આ વિડિયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરજો, મિત્રોને શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં.